Hello students, how are you all? I hope you all are good and happy. So today we will begin with the lesson number 1 of your class 4 class 4 science, that is the food we eat. जो भी हम food खाते हैं वो हमें कहाँ से मिलता है? The food we eat get from plants and animals. So plants are the primary producers. They make their own food with the help of the process called photosynthesis. But animals and other living things need the food and they depend on plants for their food. So we should always take food and which contains proper nutrients. We should take a proper balanced diet. We should never eat a junk food. We should always preserve our food in airtight containers or in the refrigerators. So let's begin with this chapter. What do we will learn in this chapter? We will learn about food. We will learn about methods of cooking food. We will learn about foods and nutrients. We will learn about balanced diet. We will learn about preservation of food, junk food, and need for exercise and games for our body. So let's begin with this lesson. Here is the match the following food items with the types of nutrients they provide. हमें जो जो nutrients provide करता है हमें उनसे match करना है. This is your homework. After reading this whole chapter, you can solve this easily. Now let's read about food. How do you feel if you do not have food for 1 or 2 days? अगर आपको 1 या 2 दिन के लिए फूड ना दिया जाए आपको कैसा लगेगा? You will feel very low. Your body will stop working properly. You will get ill. You may feel exhausted and weak. Yes, आप exhausted और weak feel करोगे. Now think of a young child who is deprived of food for many days. Will he be able to grow and live a healthy life? जो एक बच्चे के बारे में सोचो जिसको बहुत दिन से फूड सही से नहीं मिला है तो क्या वो हेल्दी लाइफ जी पाएगा? The answer is no. All living beings need food to survive. सब living beings को क्या चाहिए? फूड चाहिए किसके लिए? सर्वाइव करने के लिए. Our body uses the food that we eat to obtain energy for various internal activities. हमारी बॉडी क्या करती है? वो फूड को यूज करती है जो किस लिए चाहिए होता है? एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए फॉर वेरियस इंटरनल एक्टिविटीज लाइक रेस्पिरेशन एंड डाइजेशन एंड फिजिकल एक्टिविटीज लाइक प्लेइंग एंड वॉकिंग. यस, हमारी फूड बॉडी को इन चीज़ों के लिए फूड चाहिए होता है लाइक वॉकिंग, प्लेइंग, रेस्पिरेशन एंड डाइजेशन. फूड ऑल्सो हेल्प इन ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी. फूड किसमें हेल्प करता है? हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करता है. इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम मेनी डिजीजेस. वो हमारी बॉडी को बहुत सारी डिजीजेस से प्रोटेक्ट करता है. Therefore, food is one of the basic needs of living being. Food क्या है? एक basic need है हर एक living being का. Without food, no living being can live or survive on this earth. So, we eat a variety of food according to our taste and body requirement. हम variety of food खाते हैं किसके according? Taste के और body requirements के according. Some of us love to eat rice, while others like to eat bread or chapatis. हम में से कुछ को राइस खाना पसंद है और कुछ को चपातीस खाना पसंद है और ब्रेड्स खाना पसंद है. Some of us may be vegetarian, some of us may be non-vegetarians. Food contains substances which provide energy for survival and growth of our body. फूड में वो substances होते हैं वो किस लिए needed है हमारी बॉडी के सर्वाइवल के लिए और ग्रोथ के लिए. These substances are called nutrients. जो हमारी बॉडी को नीड होती है जिन substances की ग्रोथ के लिए उनको क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. The process by which living beings obtain and utilize food for their growth and development is called nutrition. जो एक प्रोसेस होता है कि लिविंग बींग्स ऑब्टेन करते हैं फूड को और उसे यूटिलाइज करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, तो उस डेवलपमेंट को क्या कहते हैं? और फूड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए क्या करते हैं? उसको प्रोसेस को क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज न्यूट्रिशन. Now let's talk about food and nutrients. Food और nutrients क्या होते हैं? Nutrients present in our food can be grouped into different categories according to what they do for the body. जो nutrients होता है food में present वो हम different categories में divide कर देते हैं जैसे जैसे जो work करते हैं like fats, proteins, carbohydrates, vitamins, minerals. So these categories are carbs, carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals.
Beside these, food also contain roughage and water. इन सारा फूड में क्या होता है? roughage भी होता है और water भी होता है. Now let's talk about carbohydrates. अब हम carbohydrates के बारे में पढ़ेंगे. Carbohydrates are the nutrients which give us energy to do work. Carbohydrates ऐसे हैं वो हैं nutrients है वो क्या करता है? हमारी बॉडी को एनर्जी देता है वर्क करने के लिए. Some food items rich in carbohydrates are bread, oatmeal, rice, wheat, potato, sweets and chocolate. These all food items are rich in carbohydrates. Now let's talk about protein. Protein क्या होता है? Protein help us to grow and rebuild the tissues. प्रोटीन क्या करता है? हमें हेल्प करता है ग्रो करने में और हमें रिबिल्ड करता है हमारे टिश्यूज को. फूड रिच इन प्रोटीन इज कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड. जो भी फूड रिच होता है प्रोटीन्स में उसको क्या कहते हैं? हम बॉडी बिल्डिंग फूड बिकॉज इट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ द बॉडी. प्रोटीन मेक आवर मसल्स एंड स्ट्रॉन्ग. प्रोटीन जो होते हैं हमारी मसल्स को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं. ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड अ लॉट ऑफ प्रोटीन. जो ग्रो कर रहे हो आप, ग्रोइंग चिल्ड्रन हो, तो आपको बहुत ज्यादा प्रोटीन की नीड है बिकॉज यू आर ग्रोइंग डे बाय डे. मिल्क, चीज, एग्स, बीन्स, मीट्स एंड पल्सेस आर प्रोटीन्स. क्या क्या होता है प्रोटीन्स? किस किस में होता है? मिल्क में होता है, चीज में होता है, एग्स में होता है, बीन्स में होता है, मीट्स में होता है. सोयाबीन्स हैव द हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट. सोयाबीन में हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट होता है. Here is the do you know point of this lesson. We should eat the required amount of carbohydrates to fulfill our body's need. हमें required amount of carbohydrates खाना चाहिए किसने? जो हमारी बॉडी के needs को fulfill करने के लिए. If we eat less, we will feel tired. अगर हम लेस खाएंगे तो हम टायर्ड फील करेंगे. इफ वी ईट मोर वी कैन बिकम फैट. अगर हम ज्यादा खाएंगे तो हम फैट हो जाएंगे. सो व्हाट आर फैट्स? फैट्स क्या होते हैं? फैट्स आर ऑल्सो एनर्जी रिच न्यूट्रिएंट्स. फैट्स में भी फैट्स भी हमारे एनर्जी रिच न्यूट्रिएंट्स होते हैं. दे प्रोवाइड अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स. वो कार्बोहाइड्रेट्स के अकॉर्डिंग हमें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. फैट्स प्रोवाइड एनर्जी टू आवर सेल्स. जो फैट्स होते हैं हमारी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमारे सेल्स को. दिस कीप्स आवर बॉडी वार्म. ये हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा वार्म रखते हैं. घी, बटर, ऑयल, योक, नट्स एक्सेट्रा आर रिच इन फैट्स. क्या क्या होता है रिच फैट्स में? घी, बटर, ऑयल, योक हो गया, ये हमारे फैट रिच प्रोडक्ट्स होते हैं. आवर बॉडी नीड्स फैट इन मॉडरेट क्वांटिटी. हमारी बॉडी को फैट चाहिए होता है एक मॉडरेट क्वांटिटी में चाहिए होता है. एक्स्ट्रा फैट इज स्टोर्ड इन द बॉडी फॉर फर्दर यूज. जो एक्स्ट्रा फैट होता है हमारी बॉडी में स्टोर्ड किस लिए होता है? जो हम फर्दर यूज होता है हमारे उस चीज के लिए स्टोर्ड होता है. घी, बटर, मिल्क, एग्स, ऑयल, दीज ऑल प्रोडक्ट्स कंटेन फैट इन देमसेल्व्स. सम फूड दैट कंटेन्स फैट. सो लेट्स टॉक अबाउट विटामिन्स एंड मिनरल्स. विटामिन्स एंड मिनरल्स क्या होते हैं? क्या विटामिन्स एंड मिनरल्स हमें बहुत सारी डिजीजेस से प्रोटेक्ट करते हैं. दीज आर द प्रोटेक्टिव फूड. विटामिन्स आर द न्यूट्रिएंट्स व्हिच हेल्प आवर बॉडी टू फाइट डिजीजेस. विटामिन्स हमारी बॉडी को वो ऐसे न्यूट्रिएंट्स है जो हमें बॉडी को फाइट करने में हेल्प करता है डिजीजेस से. मिनरल्स हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ बॉडी कंपोनेंट्स लाइक बोन्स एंड टीथ, ब्लड. मिनरल्स क्या करता है? हेल्प करता है बॉडी की फॉर्मेशन में. जो बोन्स बनाते हैं, ब्लड बनाते हैं और टीथ बनाते हैं. Fresh fruits and vegetables. In the vegetables, milk. Fresh fruit in the vegetables, milk, meat and fish are rich in vitamins and minerals. इन सब ये सब क्या होता है? विटामिन्स होते हैं इनमें और मिनरल्स होते हैं. Since vitamins and minerals help us to stay healthy and fit. जैसे कि विटामिन्स और मिनरल्स हमें हेल्प करते हैं हेल्दी रहने में और फिट रहने में. They are also known as protective food. उनको क्या कहते हैं हम? As I told you before, we call it them as protective food because they protect our body from many diseases and number of diseases से हमें protect करते हैं. So do you know of this chapter? Consumption of excess food is harmful. जब हम excess food खाएंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा harmful होता है. It makes us look fat and lead to many diseases like obesity etc. वो हमें fat बनाता है और हमें बहुत सारी diseases लग जाती है जैसे obesity and etc. many more others. Here is the chart of vitamins. Very often vitamins are not known by their scientific names. They are referred to as vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, E and K. So let's talk about these vitamins. Vitamin A और वो उनके sources क्या क्या हैं? कहाँ से मिलता है हमें vitamin A? We get vitamin A from milk, butter, eggs, carrots and spinach. यहाँ से हमें vitamin A मिलता है. Vitamin B कहाँ से मिलता है हमें? We get vitamin B from milk, peas, spinach, meat and seafood. यहाँ से हमें vitamin B मिलता है. Vitamin C कहाँ से मिलता है? Amla, tomato, citrus fruit, green leafy vegetables give us vitamin C.
विटामिन डी कहाँ से मिलता है हमें? वी गेट विटामिन डी फ्रॉम सनलाइट, मिल्क, बटर, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स. विटामिन ई कहाँ से मिलता है? वेजिटेबल ऑयल्स, मिल्क, बटर, होल ग्रेन्स गिव अस विटामिन ई. विटामिन के मिलता है हमें स्पिनच, कैबेज, सोयाबीन्स ऑयल से विटामिन के मिलता है. कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, आयोडीन and salt are some of the minerals required by our body in small amount. ये हमारी बॉडी को एकदम small amount में चाहिए. कैल्शियम, प्रोटीन, calcium, potassium, iron, iodine and salt. Now here are the some products which contain vitamins, vegetable milk, eggs, almonds, curd, fruits. इन सब में क्या होता है? विटामिन्स होते हैं, every kind of vitamins. रफेज, रफेज क्या होता है? हाँ, बॉडी को रफेज चाहिए डाइजेशन के लिए. जो भी फूड हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, रेस्ट जो स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्ट नहीं कर पाता वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, तो वो कैसे डाइजेस्ट हो जाता है? इट डाइजेस्ट विद द हेल्प ऑफ रफेज. फूड दैट कंटेन फाइबर इज कॉल्ड रफेज. जिस फूड में फाइबर होता है उसको कहते हैं हम रफेज कहते हैं. रफेज इज द एसेंशियल फॉर डाइजेशन ऑफ फूड. रफेज हमारी बॉडी में डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है. फाइबर्स हेल्प अस टू रिमूव वेस्ट मटेरियल आउट ऑफ आवर बॉडी. फाइबर क्या करता है? हमारी जो बॉडी में वेस्ट मटेरियल है उसे रिमूव करने में हेल्प करते हैं. हेयर डू यू नो लैक ऑफ आयोडीन कॉजेज गोइटर. अगर आपकी बॉडी में सॉल्ट या आयोडीन की कमी हो जाती है तो आपको गोइटर हो सकता है. कॉमन सॉल्ट कंटेन्स आयोडीन. जो कॉमन सॉल्ट होता है उसमें आयोडीन होता है. तो दे डू नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स. कुछ फूड्स होते हैं वो हमें न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करते, जैसे रफेज. Most fruit, vegetables and seeds have fiber. किस में फाइबर होती है? बहुत सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और उनकी सीड्स में फाइबर होती हैं. वेजिटेबल्स एंड फ्रूट सैलेड इज अ गुड सोर्स ऑफ रफेज. क्या क्या होता है गुड सोर्स ऑफ रफेज? वेजिटेबल हो गया, फ्रूट सैलेड हो गया. दिस इज द गुड सोर्स ऑफ रफेज. नाउ लेट्स टॉक अबाउट वाटर. वाटर किस में होता है? वाटर हमें क्यों पीना चाहिए? We should drink water to survive. Everyone needs water to survive. Without water, no one can survive. Water helps you in digestion of the food that you eat. So, we should always drink 6 to 7 glasses of water a day. All living beings need water to survive. सब living beings को किस लिए water चाहिए? Survive के लिए चाहिए. It is also an important component of food. ये क्या है? एक important component है इसका food का. It helps the body to digest and absorb the food. वो क्या करते हैं? हमारी बॉडी को डाइजेस्ट करने में और फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है. इट रेगुलेट्स आवर बॉडी टेम्परेचर. वो हमारी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है. इट ऑल्सो हेल्प्स इन एक्सक्रीशन. फूड जो है हमारी बॉडी को एक्सक्रीशन में हेल्प करता है. जो वेस्ट मटेरियल है हमारी बॉडी में से वाटर हेल्प करता है एक्सक्रीट करने में. आवर बॉडी इज फॉर्म्ड बाय ऑलमोस्ट 70% वाटर. हमारी बॉडी किससे बनी होती है? ऑलमोस्ट 70% ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में. वी शुड कंज्यूम 8 to 10 ग्लासेस वाटर एवरी डे. हमें 8 से 10 ग्लासेस ऑफ वाटर डेली ड्रिंक करना चाहिए. वी शुड कंज्यूम इट. नाउ बैलेंस डाइट क्या होता है? A diet which contains all the essential nutrients in a right amount is called a balanced diet. A diet that contains various nutrients, roughage and water in the right proportion required for good health is called a balanced diet. So, the amount of food required by a person depend on his age, gender and the type of work he/she does. जो अमाउंट ऑफ फूड चाहिए होता है एक पर्सन को किस पे डिपेंड करता है? उसकी एज पे, जेंडर पे और जो भी वो वर्क करता है उस पर डिपेंड करता है. So here are the some methods of cooking food. How should you cook food? A person cannot eat all the food items raw except some of them. एक पर्सन सारे आइटम्स रॉ नहीं खा सकता, कच्चे आइटम्स नहीं खा सकता, कुछ चीज़ों को छोड़ के. वी हैव टू कुक फूड बिफोर ईटिंग. हमें फूड कुक करना पड़ता है खाने से पहले. कुकिंग मेक्स द फूड टेस्टी, सॉफ्ट एंड ईजी टू डाइजेस्ट. कुकिंग क्या करता है? फूड को टेस्टी बनाता है, सॉफ्ट बनाता है और ईजी बना देता है डाइजेशन के लिए. इट ऑल्सो किल्स जर्म्स विच में प्रेजेंट इन द फूड. जो कुकिंग हम करते हैं वो हमारे किल्स कर देता है जर्म्स को जो फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं. However, during cooking, some valuable nutrients are also lost, especially if the food is overcooked. जब हम कुक कर रहे होते हैं कुछ उसमें से वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स भी लॉस्ट हो जाते हैं जब फूड ज़्यादा हमारा ओवर कुक हो जाता है, जल जाता है. सो वी शुड कुक द फूड केयरफुली. इसलिए हमें फूड को केयरफुली कुक करना चाहिए. फॉलोइंग आर सम कॉमन वेज ऑफ कुकिंग फूड लाइक बॉइलिंग. You should boil rice, pulse, potatoes, eggs and several green vegetables. ये होता है, ये बॉयल होता है. फ्राइंग, फ्राई क्या करते हो आप?
Fried potatoes, parathas, puris, chips, and fried food. Fried food contain a lot of carbohydrates and fats. Yes, फ्राइड फूड में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होता है, फैट्स होता है. क्या क्या होता है फ्राइड फूड से? हमारे फ्राइड पोटैटोज, पराठास, पूरीज, चिप्स, and fried food like bhaturas. These all are the fried food. Now, what is roasting? You eat food by roasting. Some foods are roasted before we eat them and eating. कुछ फूड रोस्ट करे जाते हैं जब तक हम उन्हें खाते हैं उससे पहले. चिकन, पोटैटो, ग्राउंडनट, ब्रिंजल एक्सेट्रा कैन बी रोस्टेड बिफोर ईटिंग. चिकन होता है, पोटैटो होता है, ग्राउंडनट्स हो गए, ब्रिंजल हो गए, रोस्ट. ये क्या होता है? रोस्ट करा जा सकता है खाने से पहले. सो बेकिंग क्या होता है? बेकिंग टेक्स सम टाइम. बेकिंग में थोड़ा टाइम लगता है, बट इट मेक्स द फूड टेस्टी. वो हमारे फूड को टेस्टी बनाता है. केक्स, बिस्किट, पुडिंग्स, पिज्जाज आर बेक्ड सो दैट वी ईट देम. क्या क्या होता है? केक्स हो गए, बिस्किट्स हो गए, पुडिंग्स हो गए, पिज्जाज होते हैं. इनको हम बेक करते हैं. क्यों? जिससे हम इनको खा सकते हैं. स्टीमिंग क्या होती है? इडली, ढोकला एंड मोमोज आर स्टीम फूड. क्या क्या होता है स्टीम फूड? इडली हो गए, मोमोज हो गए, ढोकला हो गए, ये हमारे स्टीम फूड होते हैं. राइस एंड सम वेजिटेबल्स आर ऑल्सो स्टीम्ड. राइस हो गया, कुछ वेजिटेबल्स हो गए, ये भी स्टीम्ड होते हैं. स्टीम डज नॉट डिस्ट्रॉय ऑल द न्यूट्रिएंट्स ऑफ इन फूड. स्टीम क्या करता है? डिस्ट्रॉय नहीं करता जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं. सो प्रिजर्वेशन ऑफ फूड. हमें फूड को कैसे प्रिजर्व करके रखना चाहिए? मेनी फूड आइटम्स गेट स्पॉइल्ड एट रूम टेम्परेचर इफ वी कीप देम फॉर लॉन्ग टाइम. बहुत सारा फूड आइटम होता है स्पॉइल हो जाता है रूम टेम्परेचर पे अगर हम उन्हें भारी रखे रखते हैं बहुत टाइम तक. For example, if we leave the bread in the open for some time, we will see some green patches on it. अगर हम एक ब्रेड को बाहर छोड़ दे, फ्रिज से बाहर छोड़ देते हैं बहुत देर के लिए, कुछ टाइम के लिए, तो उसमें ग्रीन पैचेस आ जाते हैं फंगस के. These green patches are due to growth of microorganisms. वो क्यों होते हैं ग्रीन पैचेस? क्योंकि उस पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करने लगते हैं. Such food gives foul smell and bad taste. इनमें से क्या आती है? फाउल स्मेल आती है और वेट टेस्ट आता है. These food can make us ill. अगर हमने ये फूड खा लिया हम बीमार भी पड़ सकते हैं. So we preserve food to keep it safe and fresh. हम फूड क्यों प्रिजर्व करते हैं रेफ्रिजरेशन में? To keep it safe and fresh. Following are the some ways of preserving food like drying, refrigerating, pickling, deep freezing, boiling. These all are the ways of preserving food. So, junk food. What do we mean by junk food? Some foods are not good for our health, even if they are very tasty. Such food is called junk food. जो फूड हमारी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं होते और वो बहुत इजीली कुक हो जाते हैं, बहुत फास्ट कुक हो जाते हैं, लाइक फास्ट फूड. These all are the, और वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है. These all are the junk food. So, junk food contains a lot of sugar and fat. जंक फूड में बहुत सारी शुगर और फैट होती है. These food make us lazy, lethargic and obese. ये फूड हमें क्या बनाते हैं? लेजी बनाते हैं, lethargic बनाते हैं और ओबेस बनाते हैं. चिप्स एंड पिज्जाज आर जंक फूड. क्या होते हैं जंक फूड? चिप्स हो गए, पिज्जाज हो गए. These all are the junk food. कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, बर्गर, चॉकलेट, समोसा, मोमोज, पिज्जा. These all are the जंक फूड. नीड फॉर एक्सरसाइज एंड गेम्स. हमारी बॉडी को नीड होती है एक्सरसाइज की एंड गेम्स की. फिजिकल वर्क हमें बहुत ज़्यादा करना चाहिए जिससे हमारी बॉडी एक्टिव रहे. एक्सरसाइज एंड गेम्स शुड बी इंक्लूडेड इन आवर डेली रूटीन. एक्सरसाइजेज होती हैं और गेम्स होते हैं, ये हमारी बॉडी मतलब डेली रूटीन में इंक्लूडेड रहने चाहिए. दे हेल्प अस डाइजेस्ट द फूड एंड रिमेन हेल्दी. वो हमें हेल्प करते हैं फूड को डाइजेस्ट करने में और हमें हेल्दी रखने में. बट नाउ-अ-डेज Children are not interested in doing exercise or playing outdoor games. आजकल लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है. क्यों? क्या करने में? बाहर खेलने में या कोई एक्सरसाइज करने में. बिकॉज दे आर बिजी इन देयर फोन्स, टीवी एंड लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स. दिस इज नॉट गुड फॉर देयर हेल्थ. वो ये उनकी आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है. दे शुड टेक पार्ट इन आउटडोर गेम्स टू स्टे हेल्दी, स्ट्रॉन्ग एंड एक्टिव. आपको क्या करना चाहिए? यू शुड टेक पार्ट इन द outdoor games to stay healthy, strong and fit and active. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a nice day.